Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Mrs. Afia Kamran Khan and I am here to teach you corporate law. Before starting this subject, corporate law, I would like to introduce myself. Well, Mrs. Afia Kamran Khan, I have done LLB. Then I practiced in District Courts Aptabad. I have qualified Public Service Commission for the post of Civil Judge, but could not be recommended due to zonal allocation. Then I did my Masters in Political Science. I have done the coursework of MPhil in International Developmental Studies. Nowadays I am working on my thesis. I am teaching corporate law since 2007. I taught in different law colleges and I taught different law subjects like business law, environmental law, corporate law, the American Constitution, international law. इस तरह के बहुत सारे law के subject मैं पढ़ा चुकी हूँ different law colleges में. Besides the academic qualification, I have participated in all Pakistan levels declamation contests. I was a very good debater of my academic career. I was the president of College Bazm-e-Adab, and during my this professional life, I was the member of ComSet's Literary Society, CLS. Usme I have arranged different declamations. I have prepared my students for all Pakistan level declamation contests. And I was the best anchor, in fact, in school and college level. So, this was my introduction. Well, formally starting the subject corporate law in accordance with the provisions of the Companies Ordinance 1984, I would give a brief introduction of the subject corporate law. कि ये corporate law की history पाकिस्तान में क्या है? Because if you think, the Companies Ordinance 1984 was set up in 1984 and Pakistan came into being in 1947. तो 47 से लेकर 1984 तक हमारे मुल्क में कौन से कवानीन कंपनी लॉ के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कौन से कवानीन पर अमल किया जाता था? उसके लिए I would give you a brief introduction, a brief history of the corporate law. As all of you know, that today the corporate sector of Pakistan is governed by the Companies Ordinance 1984. हम कंपनी सेक्टर की जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं उनको डील करने के लिए हम जिन प्रोविजंस पे अमल दरामद करते हैं, जो कानून हम फॉलो करते हैं, जिसके हम ताबे हैं, that is the Companies Ordinance 1984. And the history of corporate law in this region is much older than the history of Pakistan. Great Britain passed the Companies Act in 1908. 1908 में Companies Act पास हुआ, and this act actually introduced several important provisions relating to companies administration. But almost after 5 years, in 1913,
Companies Act of 1913 was passed in British India. यानी पहले हमारे पास क्या था? Companies Act of 1908. उसके बाद 5 साल बाद हमारे पास 1913 का कानून आया. 1908 के बाद 5 साल बाद 1913 का कानून आया. कंपनीज लॉ से रिलेटेड, कंपनीज की कंट्रोवर्सी को डील करने के लिए जो कानून आया वो 1913 में आया, which was passed in British India. Pakistan came into being on 14th August 1947, and in Pakistan we adopted the Companies Act of 1913, which was passed in British India. In 1959, a Company Law Commission was set up to make laws in accordance with the modern times. यानी जब मुल्क बना हम 1913 का कानून फॉलो करते रहे, क्योंकि हमारे पास अपना कोई कंपनीज का कोई ऑर्डिनेंस, कंपनीज के कोई कवानीन नहीं थे. कंपनीज को कि कंपनी लॉ को डील करने के लिए हमारे पास कवानीन नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान में 1947 के बाद 1913 का जो एक्ट था, कंपनीज एक्ट ऑफ 1913, वो हम फॉलो करते रहे. और इवेंचुअली 1959 में लॉ कमीशन बना. लॉ कमीशन बना कि हम ऐसे कवानीन बनाए कंपनीज के लिए जो आज के वक्त के मुताबिक हो. 1913 तो बहुत पहले का वक्त था और वो कवानीन पहले के बने हुए थे. सो नाउ द नीड वाज टू मेक लॉज इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न टाइम्स. द लॉ कमीशन compiled a report, and this report of Company Law Commission of Pakistan was published in 1960. ये जो कमीशन बनी थी 1959 में, इस कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई, दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1960. एंड फाइनली द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913 वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. सो ये सफर शुरू हुआ था 1908 के एक्ट से, कंपनीज एक्ट ऑफ 1908. फिर 1913 का एक्ट पास हुआ ब्रिटिश इंडिया में. उसके बाद पाकिस्तान बना. कहा पाकिस्तान ने उसी 1913 के एक्ट को फॉलो करता रहा फॉर डीलिंग विद द कंट्रोवर्सीज ऑफ द कंपनीज, बिकॉज वी डिडंट हैव एनी कंपनीज एक्ट. And at that time we were following the Companies Act of 1913. And in 1959 a Company Law Commission was set up to make laws in accordance with the modern times. और फिर 1959 में जो कमीशन बनाई गई थी, उस कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, एंड दैट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1960. साल बाद वो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई 1960 में. और उसके बाद इवेंचुअली द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम का एक्ट था, दैट एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. उसके बाद जनाब क्या पर्पस था? What was the purpose? पर्पस ये था 1984 के ऑर्डिनेंस के बनाने का कि हम अपने मुल्क, चूंकि मुल्क हमारा इस्लामी था, इस्लामी मुल्क के मुताबिक हम अपने कंपनी लॉज बनाएं. हम अपने कंपनी लॉज अपने सिस्टम, अपने कल्चर के मुताबिक बनाएं. लॉज तो ऑलमोस्ट वही थे, लेकिन उसमें दे नीड टू बी अमेंडेड. उसमें बहुत सी चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत थी. सो हमने वो तब्दीली मॉडर्न टाइम्स के मुताबिक की और उनको हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में शामिल किया. अब जी ऑर्डिनेंस बन गया. नाउ व्हाट इज द पर्पस? क्या मकसद है कि हम आपको ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 या व्हाई वी टीच द कॉर्पोरेट लॉ टू आवर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टीचिंग कॉर्पोरेट लॉ? बिकॉज
अक्सर सुना यही गया है कि लॉ तो वो लोग पढ़ते हैं जो LLB पर करते हैं, जो वकील बनते हैं। वेल, आई डोंट थिंक सो। कानून हम सब की जरूरत है। कानून को समझना, कानून को उस पे अमल करना, ये हम सबका सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के नाते फर्ज है। अब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 हमारे पास एक कवानीन का मजमूआ है विच डील्स विद द प्योरली कंपनी लॉज, कंपनीज को डील करने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करने के लिए कि कंपनी किस तरह, कंपनी, व्हाट इज अ कंपनी, हाउ डू दीज कंपनीज गेट रजिस्टर्ड, what are the documents to be prepared by the companies for the incorporation of companies, what is the administration and management of the company, about the audit and account of the company, about different types of companies, the way the company issue shares, the way the company allot shares. ये तमाम बातें हमारे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर मौजूद है। कंपनीज के मुताल्लिक हर बात is given in the Companies Ordinance 1984, both public companies and private companies. All the provisions are given under the Companies Ordinance 1984. Now, your syllabus is actually that ordinance, the Companies Ordinance 1984. और उस ऑर्डिनेंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने आपकी टेक्स्ट बुक बताई है जो आपको वो तैयार की गई है। That textbook which you will follow, and that textbook is actually in accordance with the provisions of the Companies Ordinance 1984, and that is your syllabus. The purpose of this module, which we are going to teach you, the corporate law, is to give the students an insight into the various facets of Companies Ordinance 1984, and that is outlined in the syllabus. This course deals with the practical as well as theoretical approach to the Companies Ordinance 1984. और उसके साथ साथ ये जो हम आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं वो ना सिर्फ के कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को से आपको रूशनास कराता है, बल्कि उसके साथ साथ यू विल गेट टू नो अबाउट द SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, a deep insight of Mudarba companies and Mudarba Ordinance 1980 will also be given, and about the Mudarba companies and Mudarba rules 1981 will be the knowledge of these acts, these ordinances, these rules will be given to the students. So logic है corporate law पढ़ाने की। corporate law आप लोग पढ़ेंगे, आप इन कवानीन को समझेंगे तो आप एक सेफ बिजनेस कर सकेंगे। आप किसी भी जगह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज व्हेन यू विल जॉइन एनी कंपनी, एनी कॉरपोरेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको नो हाउ होगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हाउ टू रन अ सिक्योर बिजनेस, योर own identity in that business, your liabilities, your duties, your rights. So ये तमाम चीज़ें, हमारे हुकूक, हमारे फ़राइज़, और उनको अगर हम पूरे ना करें तो उसमें जो पेनल्टी होती है, ये तमाम चीज़ें हमें तब समझ में आती है जब हम कानून को समझते हैं, जब हम लॉ को समझते हैं। सो ये जो कॉर्पोरेट लॉ है ये प्योरली हमें बताता है कंपनी लॉज, वो कवानीन जो कंपनीज को डील करती हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉर्पोरेट लॉ? अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, क्यों? इसके अलावा हम कोई और सब्जेक्ट भी तो पढ़ सकते हैं, क्या ये सब्जेक्ट आगे चल के हमारे काम आएगा? एंड बिलीव मी, व्हेन आई कंप्लीट दिस कॉर्पोरेट लॉ, द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ,
उनमें से बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, माई स्टूडेंट्स, एंड मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन दे शेयर विद मी कि हमने बहुत कुछ सीखा, हमने प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा। अब क्या ऑब्जेक्टिव है? व्हाट डू द स्टूडेंट्स लर्न आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ? This subject, corporate law, provides the students with thorough knowledge of all the corporate laws to advise and assist the management for taking the appropriate and the prompt decisions. ये भी एक बहुत बड़ा फन होता है कि आप सही वक्त पे सही फैसला करें। So, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप पे कम से कम इतनी नो हाउ आती है कि यू कैन एडवाइज एंड असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द एप्रोप्रिएट एंड द प्रॉम्प्ट डिसीजन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इज to explore in detail the major concepts and issues that are essentials in today's business world. आज के जो बिजनेस की दुनिया है, ये कंपनीज का दौर है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे सारा कुछ बेस करता है, यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इश्यूज हैं। सो ये तमाम चीज़ें इससे आपको आगाही होती है आफ्टर स्टडिंग दिस कॉर्पोरेट लॉ। The object of corporate law is to carry the business in legal ways. बहुत से businesses लोग करते हैं, but they do not incorporate their business. They do not register their business. So उनका business, उनको फिर उससे damages होते हैं. So if you know the laws, the corporate laws, you will definitely know how to carry a secure business, a legal business. And the object of corporate law is to make the students aware of the legal issues involving businesses and how to deal with them. And inshallah ta'ala, when you will complete this course, when you will finish the syllabus of the corporate law, you will be able to deal with the practical implementation of all the laws and rules prescribed in the syllabus. मतलब कि हम तो सिर्फ सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ते हैं, कोई भी दफ़ा पढ़ते हैं कि ये दफ़ा 14 है, दफ़ा ये है, ये हमें ये कहती है, लेकिन उसके बाद जब आप कोई भी दफ़ा कोई भी सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये पता होगा कि ये दफ़ा कहाँ पे लगती है, कहाँ पे ये लागू होती है. सो my students will be able to deal with the practical implementation of laws and rules prescribed in the syllabus. Well, I hope अब आपको समझ आ गई होगी कि what is the logic behind teaching corporate law to you, to the students. What are the objectives of corporate law? And the logic is simple. Logic ये है कि आप जब corporate law पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड डेफिनेटली आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का बहुत सी ऐसे कवानीन आपके इल्म में आ जाएंगे कि जिसका आपको उससे पहले पता नहीं होगा एंड आपको पता चल जाएगा हाउ टू इन्वेस्ट मनी, how to secure your business, how to be what are the rights and liabilities as an employee, who are the directors of the company, what is the chief executive of the company, what is the status of different meetings in the history of company, what is resolution, how do these resolutions in different companies get passed. So ये तमाम चीज़ें ये हमारा इसमें concepts clear होगा after studying the corporate law. Now I'll give you a little introduction of all the contents of all the topics which we will study in the upcoming lectures. So the introduction of the
corporate law, the contents. This corporate law is divided into different parts. The first part is termed as the elements of company law. The elements of company law. The second part is the share capital part, which is the important part. And you need to understand all the contents of the share capital, and the contents of share capital needs special attention. Then the borrowing powers part. उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, ऑडिट एंड अकाउंट्स का पार्ट, मुदारबा, and finally the single member company, and then the winding up of the company. Winding up of the company, if it's not given in the textbook, the slides are given under the guidance of the Security and Exchange Commission of Pakistan. But the winding up is an important topic. Winding up of the company. The elements of company law. In the elements of company law, जब हम इसको start करेंगे तो first chapter जो होगा, the very first chapter, that is consisted about the definitions. All the definitions which we will study in the upcoming lectures, those definitions are given in chapter 1. All the concepts and definitions. बहुत से लॉ टर्म्स होते हैं, जब वो अचानक से हमारे सामने आते हैं किसी टॉपिक में तो हमें उसकी समझ नहीं आती, उसको पहले से समझना ज़रूरी होता है. सो द डेफिनेशंस एंड द कॉन्सेप्ट्स पार्ट, उसमें तमाम वो लॉ टर्म्स, लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके डेफिनेशंस फर्स्ट चैप्टर में क्लियरली दिए हुए हैं. And after studying the definition and concepts part, we will study about the codes, SECP and registrar. यानी ये जो कंपनी लॉ है, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, the controversies of the corporate sector will be which court will have the jurisdiction to deal with the controversies of the corporate sector. ये हमने देखना होगा किस अदालत के पास इख्तियार समात है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के केसेस को सुने. So जी, High Court will have the jurisdiction to deal with the controversies of the corporate sector, and if in some cases the federal government may empower the civil courts to have the jurisdiction. What is SECP? SECP is Security and Exchange Commission of Pakistan. The SECP is based in Islamabad, and it shall have not less than 5 and not more than 7 members, and these members are called the commissioners. Now ये जो commissioners होते हैं, इन्हीं में से किसी एक को कंपनी का SECP का chairman appoint किया जाता है, और this chairman shall be appointed by the federal government. Federal government appoint the chairman from among these commissioners. कमिश्नर में से एक बंदे को SECP का चेयरमैन बनाया जाता है. और याद रखिए, मोस्टली द कमिश्नर्स, the members of SECP who are called the commissioners, they are from the private sector. ये है हमारे पास SECP का एक स्ट्रक्चर. उसके बाद हम देखेंगे who is a registrar. Registrar is the one who registered the companies under the Companies Ordinance 1984. रजिस्ट्रार की भी बहुत सी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सी लाइबिलिटीज़ हैं. उसने तमाम रिकॉर्ड रखना होता है कंपनी के मॉर्गेजेस का, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, अबाउट द कंडक्टिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, एंड ही इज़ द वन हु हैज़ बीन गिवन द power to extend the period of annual general meeting for to a maximum of 30 days. लेकिन ये हक उसको दिया गया है सिर्फ और सिर्फ जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें वो एक्सटेंशन दे सकता है. लिस्टेड कंपनीज के AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन जो होती है वो सिर्फ
SECP दे सकती है। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी में की एक बहुत अहम मीटिंग होती है, उसमें बाज़-औक़ात एक्सटेंशन चाहिए होती है, तो अगर लिस्टेड कंपनी को एक्सटेंशन चाहिए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन देती है, और अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए एक्सटेंशन चाहिए, आगे बढ़ाना चाहते हैं वो डेट, सो द एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट व्हाट इज अ कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। जिस तरह हमारे पास पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, चार्टर्ड कंपनीज और स्टैट्यूटरी कंपनीज। सो इन तमाम कंपनीज की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। उसके बाद हम देखेंगे द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। सो रिमेंबर दिस थिंग दैट सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 requires that the company which is comprising of more than 20% and that business is formed for carrying on business for profit, then that business need to get itself registered. Yani this is the obligation on the companies to get themselves registered under the Companies Ordinance 1984. ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। इसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट प्रोविजंस कि जी कौन कौन सी कंपनीज है दोज जिन पे इनकॉर्पोरेशन लागू नहीं होती है, वो उनका इंदराज हो या ना हो, यानी दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 14। उसके अलावा इस चैप्टर की आगे और डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक जो कंपनी है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगी व्हेन द कंपनी वांट्स टू get itself incorporated. उसके बाद हम देखेंगे about the memorandum of association. Memorandum of association क्या है? Memorandum of association means the constitution, the document which sets out the constitution of the company, and it is actually the foundation. ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फाउंडेशन होती है अपॉन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज बेस्ड ऑन. इट डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज एंड इट्स रिलेशंस विद आउटसाइड्स. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है विच इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब कौन सी कंपनीज है जिनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है और कौन सी वो कंपनीज है जिनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड कराना ऑप्शनल है, ये देखते हैं हम. इट इज ऑप्शनल फॉर द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू गेट द आर्टिकल्स रजिस्टर्ड. यानी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी उस पे ऑप्शन है, उसकी मर्जी है, वो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का उसको वो या रजिस्टर कराए या ना कराए. लेकिन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी फॉर लिमिटेड बाय गारंटी. यानी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के नाम से है उसने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को लाजमी रजिस्टर कराना होगा. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी बनाती है पहले, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स mentioned in the memorandum of association. The articles of association deals with the internal matters of the company, the internal activities of the company. उसके बाद जी हम देखेंगे द नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम जब कंपनी रखती है सो कंपनी ने बहुत सी चीज़ों का, बहुत से पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा. सो while selecting the name of the company, it must be considered that the name
is not, in the opinion of the commission, of the SECP, is inappropriate name. कोई नामुनासिब नाम ना हो जो कमीशन कहेगी जी ये क्या नाम आप अपनी कंपनी का रख रहे हैं. So the name must always be some appropriate name and must not be based on some deception. धोखाधड़ी पे कंपनी का नाम मबनी ना हो. So हम बात कर रहे हैं चैप्टर की जो कि है द नेम के नाम से, यानी कंपनी का नाम. कंपनी का कोई नाम रखने से पहले किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. ये ज़रूरी है कि नाम एप्रोप्रिएट है. ये ज़रूरी है कि नाम किसी भी फ़िरके को, किसी के मजहबी जज्बात को मजरू ना करता हो. हमने ऐसा कोई नाम नहीं रखना. हमने ऐसा कोई नाम नहीं रखना विच इज़ आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ द कंपनी already registered and does not closely even resemble with the name of the company already registered. यानी किसी कंपनी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नाम भी नहीं रखना और किसी कंपनी के नाम जैसा नाम भी नहीं रखना. सो इस तरह की बहुत से प्रोविजंस हैं जो कि द नेम चैप्टर में हम पढ़ेंगे. उसके बाद जी हम देखेंगे द प्रोमोटर्स. हु आर द प्रोमोटर्स? The promoters are those persons who are responsible for the preliminary steps of the company. Promoter may be an individual, can be a company. So, promoter कौन होता है? He is the one who is responsible for the preliminary steps taken in the formation of the company. जब कंपनी बन रही होती है उस वक्त जो स्टेप्स उठाने वाला बंदा होता है, जब प्रिलिमिनरी स्टेप्स, those steps are to be taken by the promoter. So he is the one who undertakes to form the company with reference to a given object and to set it going, and who takes necessary steps for the accomplishment of those goals. ये होता है हमारे पास प्रोमोटर. प्रोमोटर को डिफरेंट तरीक़ों से उसकी रेम्यूनरेशन होती है. उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से सैलरी देते हैं. उसको कंपनी के प्रोमोटर को लमसम भी दी जा सकती है. कंपनी के प्रोमोटर का इस तरह भी हो सकता है कि द प्रोमोटर मे परचेज अ प्रॉपर्टी एंड मे सेल इट ऑन प्रॉफिट टू द कंपनी. द वेंडर्स जो होते हैं जिनसे कंपनी कोई भी माल लेती है, कोई भी चीज़ें लेती हैं, वो वेंडर्स होते हैं कंपनी के. द वेंडर्स मे एग्री टू पे कमीशन टू द प्रोमोटर्स ऑन सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी. आप वेंडर्स की प्रॉपर्टी कंपनी को भेजें, वेंडर आपको कमीशन देता है. ये भी रिम्यूनरेशन होती है, कंपनसेशन होती है, सैलरी होती है प्रोमोटर की. आफ्टर द चैप्टर प्रोमोटर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोस्पेक्टस. कि प्रोस्पेक्टस क्या चीज़ है? Prospectus is a document which is published in order to induce the people to purchase the shares of the company. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए हम लोगों को कहते हैं कि जी हमारी कंपनी के शेयर्स लें. There are different requirements of prospectus. The prospectus must include an auditor's report on last 5 years loss and profit account, and the prospectus must be published not less than 7 or more than 30 days before the subscription date. So जब भी prospectus कंपनी बनाती है, कंपनी उस यकीन के साथ बनाए कि prospectus में कोई भी गलत बयानी, कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट ना हो, क्योंकि लोग उस prospectus पे यकीन करके कंपनी में शेयर्स लेते हैं और अगर उसमें कोई बात झूठी साबित हो जाए तो उसके लिए फिर पेनल्टी होती है. सो इफ देयर अराइज एनी अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, सो देयर अराइज 2 types of liabilities, civil liability and criminal liability. If a company does not prepare its prospectus, then the company will submit a statement in lieu of prospectus. Prospectus कंपनी ने नहीं बनाया तो prospectus की जगह एक statement जमा कराती है. prospectus एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, जबकि जो statement in lieu of prospectus है वो एक समरी टाइप होती है prospectus की, जो कि कंपनी जमा कराती है जब कंपनी ने prospectus नहीं बनाया होता है. उसके बाद we will study the share and
share capital and the classes of both shares and share capital. Share क्या है? Share is actually, a share is a right. ये आपका हक होता है to receive a certain proportion of profit made by the company while it is a going concern. और ऑर्डिनेंस कहता है शेयर इज अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा शेयर कहलाता है. सो शेयर कैपिटल क्या है? द अमाउंट विद विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड. वो सरमाया जिससे हम बिजनेस का आगाज करते हैं वो शेयर कैपिटल कहलाता है. शेयर कैपिटल के डिफरेंट क्लासेस हैं. नॉमिनल शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल. एंड इसी तरह शेयर्स के हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं. द ऑर्डिनरी शेयर्स, द प्रेफरेंस शेयर्स, द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. अब जब हमें पता चल गया कि शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, अब कंपनीज ये शेयर्स अलॉट करती है अंडर द हेडिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अलॉटमेंट ऑफ शेयर is the division of entire share capital into definite shares and of different classes and then assignment of these shares to different people. Allotment of shares क्या है? Shares को issue करना different लोगों के नाम, different किस्म के shares, क्योंकि shares की different अक़साम है, different classes हैं. मुख्तलिफ लोगों के नाम हम डिफरेंट शेयर्स इशू करते हैं और ऑफ कोर्स जो शेयर्स इशू करते हैं उस पे हम उनको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देते हैं. तमाम शेयर होल्डर्स को एक जैसा प्रॉफिट नहीं मिलता. सो वी हैव शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस. द क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल विच वी विल स्टडी इन डिटेल in the upcoming lectures. और फिर allotment of shares क्या है? Allotment of share means division of entire share capital into definite shares, each of a particular value, and then assignment of these shares to different persons. We will study about the issuance of shares at discount and issuance of shares at premium. शेयर की एक कीमत होती है. उस कीमत से जब हम शेयर्स उससे ज्यादा पर बेचेंगे, 10 सपोज 10 कीमत है और अगर हम 12 पे बेचेंगे तो इसका मतलब है कि हमने प्रीमियम पे शेयर बेचे. और जब शेयर इशू होते हैं अपनी जो दी हुई कीमत से कम पर तो उसको हम कहते हैं शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हुए हैं. और उसको हम ऐसे कहेंगे व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट एन अमाउंट more than its face value, it is known as issuance of shares at premium. And when the shares are issued at an amount less than its face value, it is known as issuance of shares at discount. उसके बाद हम देखेंगे the alteration of capital. The alteration of capital under section 92 of the Companies Ordinance 1984. A company limited by shares, if authorized by its articles, the company can increase, consolidate, subdivide, divide or even cancel its shares. ये होता है अल्ट्रेशन, रद्दोबदल. कैपिटल में, उन पैसों में रद्दोबदल. कंपनी कैपिटल में अल्ट्रेशन कर सकती है, उसको इंक्रीज भी कर सकती है, उसको कंसोलिडेट भी कर सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है, उसको सब डिवाइड भी किया जा सकता है. The reduction of capital under section 96 of the Companies Ordinance 1984. Here we will see that a company limited by shares, that company can, if authorized by its articles, अगर उस कंपनी के articles of association इजाजत दे, उसमें ये लिखा हो कि कंपनी रिडक्शन कर सकती है, then a company can reduce its capital. We will study all the provisions of this chapter, reduction of capital, in detail. Then comes the transfer and transmission of shares. मैं अपने shares
दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हूँ। अपनी जिंदगी में जब मैं अपने शेयर्स किसी को बेचूं, किसी को गिफ्ट करूं, सो दिस इज द सिंपल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन भी शेयर को मुंतकिल करना है, बट थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ, बजरिए कानून, एंड ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। लाइक कोई मर जाए, उसके शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर होते हैं बजरिए कानून, कोई पागल हो जाए, कोई बैंक करप्ट हो जाए। सो इस सूरतों में जब शेयर्स एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, सो वो होते हैं थ्रू ऑपरेशन, बजरिए कानून। वो शेयर होल्डर का विलफुल एक्ट नहीं होता, अपनी मर्जी से वो नहीं कर रहा होता, जबकि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज द विलफुल एक्ट of the deliberate act of the shareholder, and transmission takes place on the happening of certain events like death, insolvency or lunacy. उसके बाद हम देखेंगे the borrowing powers. Every company has an implied power to borrow, irrespective of any contrary provisions contained in the company's ordinance. या कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या ऑर्डिनेंस के रूप से कंपनी पे कोई पाबंदी नहीं है, तो कंपनी का ये इम्प्लाइड इख्तियार है कि वो बोरो करे। और बोरोइंग हमारे पास लॉन्ग टर्म होती है और शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वी हैव द रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, discounting commercial papers and public deposits. And in long-term borrowing, we have loan against mortgage, loan from DFIs, NBFCs, non-banking financial companies, redeemable capital, TFCs, term finance certificate. So हमारे पास different types की borrowing होती है। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर कर्जे का एतराफ करने वाली एक दस्तावेज है। मैंने कंपनी को कर्जा दिया, कंपनी ने मेरे नाम डिबेंचर इशू किया, मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है, मेरे पास डिबेंचर है जो इस बात का सबूत है, एतराफ है कि मैंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है। अब कंपनी के पास मेरा पैसा महफूज है, वो एक खास टाइम के बाद कंपनी विल रीपे द मनी टू मी एंड द कंपनी विल ऑल्सो गिव मी द इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। सो डिबेंचर इज द एविडेंस ऑफ डेट, कर्जे का एतराफ होता है डिबेंचर। डिबेंचर इज विद द डिबेंचर होल्डर, जिसने कंपनी से को लेंड किया होता है, पैसा दिया होता है, उसके पास डिबेंचर होता है और वो डिबेंचर होल्डर कहलाता है। जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, उसके बाद कंपनी ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। ट्रस्टीज वो लोग होते हैं जो डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर के राइट्स का ख्याल रखते हैं, और ट्रस्टीज ही वो लोग होते हैं जो अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम हो, सो द ट्रस्टीज कैन सू द कंपनी। सो ये है द डिबेंचर। डिबेंचर इट इज एक्चुअली द सिक्योरिटी गिवन टू द इन्वेस्टर। जो मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने कंपनी को पैसा दिया, इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरा पैसा भी कंपनी के पास मौजूद है, कंपनी ने उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है। सो मेरे पास सबूत क्या है कि मैंने कंपनी को पैसा दिया हुआ है? मेरे पास सबूत है डिबेंचर, जो कि कर्जे का एतराफ करने वाली एक दस्तावेज है। डायरेक्टर्स, every company will definitely have a director. We have the first directors and the subsequent directors. First directors वो होते हैं जो कि कंपनी के जब तक कि उसका AGM नहीं हो जाता, till AGM the subscribers or the founders, they act as the first directors. क्योंकि कंपनी की AGM एनुअल जनरल मीटिंग तकरीबन 18 महीने बाद होती है, और 18 महीने बाद जब AGM होती है उसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होता है। अब ऑफ कोर्स द कंपनी कैन नॉट रन इट्स बिजनेस विदाउट हैविंग अ डायरेक्टर। सो जब AGM नहीं हुई होती उस वक्त तक द सब्सक्राइबर्स ऑफ द और द फाउंडर्स दे मे एक्ट एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, और दे मे
choose one among themselves to be the first director. So first director का tenure क्या होता है? They hold office till first AGM. और first AGM में election of directors होते हैं. उसके बाद हमारे पास जो directors आते हैं for the term of 3 years, they are called the subsequent directors. अब आपको समझ आ गई फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, सब्सीक्वेंट कौन होते हैं? नहीं आई? जनाब, फर्स्ट डायरेक्टर्स वो होते हैं जब कंपनी बन गई, कंपनी को डायरेक्टर्स चाहिए, एजीएम में इलेक्शन होना है और उसी में कंपनी के पास सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स आने हैं 3 साल के लिए. लेकिन वो जो 18 महीने का टाइम होता है उसमें भी तो कंपनी को डायरेक्टर चाहिए. उस वक्त कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं या जो सब्सक्राइबर्स होते हैं दे एक्ट एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स और उसके बाद एजीएम में सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स इलेक्ट हो जाते हैं. इसके अलावा देयर आर सो मेनी प्रोविजंस. देयर आर द चैप्टर डायरेक्टर इज इन डिटेल which tells us about the retirement of directors, about the procedure of election of directors, about the removal of directors, about the fresh election of directors, and the eligibility criteria, the ineligibility criteria for the directors, that who are ineligible to be the directors of the company. कौन नाअहल है कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए? All these details will be given in the chapter director. उसके बाद the chief executive. Chief executive कौन होता है? Chief executive of the company is the one who works under the directions of the directors. अब डायरेक्टर की मर्जी है कि वो इस चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने कुछ इख्तियारात दें, तमाम इख्तियारात दें, अपने इख्तियारात का एक पोर्शन वो इस चीफ एग्जीक्यूटिव को दे. दैट्स अप टू द डायरेक्टर. सो सिंपल ये chief executive in relation of the company means an individual who is subject to the control and direction of directors, and the directors may give him whole or any of his powers. चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका भी टर्म ऑफ ऑफिस होता है, उसकी अपॉइंटमेंट के कुछ प्रोविजंस होते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लाइक हु इज इनएलिजिबल टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 201 of the Companies Ordinance 1984, and what are the restriction on the business of the chief executive. All these provisions we will be dealing with these provisions in the upcoming lectures. The company will have a secretary as well. And who is a secretary? Secretary means any individual who is appointed to perform the secretarial as well as administrative or other duties performed by the secretary of a company. So ये secretary जो होता है वो secretarial duties के अलावा administration का काम भी करता है. और याद रखें कि बहुत से कंपनीज के जो सेक्रेटरीज हैं वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचे हैं. सो कंपनीज के सेक्रेटरीज यूजुअली कोई बहुत कम लोग नहीं होते. नॉर्मली द रिक्वायरमेंट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनको अपने काम पे महारत हो, जिनको जो चीज़ों को समझे, कंपनीज को देखे और उसको तमाम उसका रिकॉर्ड रखे. सो सेक्रेटरी के बहुत ओहदा भी कुछ कम अहम नहीं होता डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ. एंड आफ्टर दिस we'll see who are the shareholders, the members. shareholders कौन होते हैं? हर वो बंदा जिसका कंपनी में शेयर होता है, जिसका शेयर कैपिटल में हिस्सा होता है, जिसका वोटिंग राइट होता है कंपनी में, जिसको वोट देने का हक हो, जिसके नाम कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हो, वो शेयर होल्डर है.
कंपनी के शेयर होल्डर आप कैसे बनेंगे? हाउ टू बिकम अ मेंबर, अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी? बाय सब्सक्रिप्शन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने साइन किया है, सब्सक्राइब किया है उसको, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय एप्लीकेशन, बाय ट्रांसफर, by succession, by estoppel. There are different ways by which a person can become a member of a company. A person can cease to become a member of a company as well. यानी उसकी मेंबरशिप खत्म हो कैसे होगी? मेंबर की डेथ हो गई, मेंबरशिप खत्म, उसने अपने शेयर्स बेच दिए, मेंबरशिप सीज्ड, उसने कंपनी की वाइंडिंग अप हो गई, मेंबरशिप सीज्ड, उसके शेयर्स को जब्त कर लिया गया, मेंबरशिप हैज सीज्ड. So there are the different, a person may cease to be a member of a company. हर कंपनी में रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स किस तरह से होगी? shall have a minimum of 3 members and there is no restriction to maximum members. पब्लिक कंपनी है, कम से कम 3 होने जरूरी है, ज्यादा जितने हो अनलिस्टेड के लिए. अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो उसके कम से कम 7 मेंबर्स होने जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. अ प्राइवेट कंपनी शैल हैव 2 मेंबर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स और सिंगल मेंबर कंपनीज शैल हैव ओनली 1 मेंबर. ये दिस इज द रिक्वायरमेंट for members in different companies. In every company, meetings are very important. Company will have a statutory meeting, the annual general meeting, AGM, जिसका मैंने आपको बताया election of directors होता है, the extraordinary general meeting, EGM. कंपनी में different resolutions पास होती है, करारदाद पास होती है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए. हमारे पास रेजोल्यूशंस होती हैं. रेजोल्यूशन हम कहीं पे हमें उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है करारदाद को पास कराने के लिए, कभी हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है. सो द पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन विद डिफरेंट मेजॉरिटीज डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस. द कंपनी विल हैव स्टैट्यूटरी बुक्स. अब ये स्टैट्यूटरी बुक्स पे the company will have different registers to be maintained and to be kept properly in a safe custody. अब स्टैट्यूटरी बुक्स जो कंपनी की होती है ये अहम होती है क्योंकि उसमें तमाम रिकॉर्ड होता है कंपनी का. एंड दी स्टैट्यूटरी बुक्स लाइक अगर कंपनी के कोई मॉर्गेजेस हैं, कोई रहन किया हुआ है कंपनी ने, कोई चार्जेस हैं, तो उनका रिकॉर्ड एक रजिस्टर पे ना सिर्फ कंपनी रखेगी बल्कि उसके साथ साथ द रिकॉर्ड the registrar is also required to keep a register in respect of the company's mortgages and charges. उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी बुक्स में आ जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कि जी ये कंपनी के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये शेयर्स लिए, इस तारीख को ये शेयर होल्डर बने, इतने उन्होंने इस पे पैसा दिया. सो ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द मेंबर्स आर गिवन in the register and this register is a part of the statutory books of the company. और उसके अलावा जो statutory books में शामिल है register of debenture holders, जिसने कंपनी को कर्जा दिया होता है, जिससे कंपनी ने बोरो किया होता है, वो डिबेंचर होल्डर होता है, उसके नाम कंपनी ने डिबेंचर इशू किया होता है और उस डिबेंचर की तमाम डिटेल्स इस रजिस्टर में दर्ज होती है एंड दिस रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स. उसके अलावा annual list of members shall also be maintained under section 1956 of the company's ordinance 1984. Minutes of proceedings of general meetings and directors. So a company shall also keep all the minutes of the meetings and that record is also the part of the statutory books. उसके अलावा register of directors shall be maintained by the company and the register of all the contracts, arrangements, agreements. So that must be kept by the company and these are the statutory books of a company. Company will have its audit, the auditor.
ऑडिटर कौन होता है? जो कंपनी का ऑडिट करता है. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी made by the company, balance sheet of Modarba companies, authentication of balance sheet, copy of balance sheet to be forwarded to the registrar. All these details will be, we will study these topics in detail. But आप उसको समझ लें कि ये topics हैं हमारे upcoming lectures के. ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं, डिफरेंट उस पर लायबिलिटीज़ होती हैं, उसने अपने काम में अपने जो वो काम कर रहा है उसमें कोई कोताही की, सो हम कहते हैं कि जी इस पर सिविल लायबिलिटीज़ आयद हो गई, नेग्लिजेंस उसने की, मिसफीजेंस की. ऑडिटर ज़ाहिर है कंपनी के ऑडिट का काम करता है, वो उसके तमाम अकाउंट्स की जांच परख करता है कि जी पैसा सही लगा है, सही नहीं लगा है, हिसाब किताब चेक करता है. सो उसमें द ऑडिटर विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर वो कोई भी कोताही करता है तो वो गिल्टी होता है नेग्लिजेंस का या मिसफीजेंस का, और उसके अलावा उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी भी आयद होती है. डिविडेंड. Dividend is the profit which the shareholders will get out of the shares. बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है शेयर्स के बिजनेस से, उसको हम कहते हैं डिविडेंड. और वो डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स में इन अकॉर्डेंस विद देयर शेयर्स तकसीम होता है. फिर डिविडेंड को तकसीम करना लाजमी होता है. नहीं किया डिविडेंड, कंपनी ने, द कंपनी हैज अनाउंस द डिविडेंड, कंपनी ने प्रॉफिट को अनाउंस कर दिया और तकसीम नहीं किया तो तब भी उस पर जुर्माना होगा. सो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम शेयर्स विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स. मुदारबा कंपनीज कौन सी होती हैं? सिंपल जहन में रखें. The company, the business in which one person participates with the money and the other person participates with his skills. ये होता है मुदारबा, ये होता है मुदारबे का बिजनेस. जिस बंदे का पैसा होता है वो रब्बुल माल होता है, कहलाया जाता है. एंड द वन हु इज द वर्किंग पार्टनर, जिसकी स्किल्स होती है, जो काम करता है, उसको कहा जाता है द मुदारिब. सो मुदारबा बहुत हमारे यहाँ आजकल होता है और इसका एक लीगल स्टेटस है. और मुदारबा कंपनीज also need to get themselves registered. We have different types of मुदारबात, specific for one purpose, for one object, and multi-purpose मुदारबात भी होते हैं जो कि more than one purpose के लिए होते हैं. Then the single member company. The company which is registered with one member is the single member company, and that single member company can change its status. It can be converted into a private company, but for that the single member company will have to raise its members. जो रिक्वायरमेंट सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एक है, प्राइवेट कंपनी के लिए तो कम से कम मेंबर्स की तादाद एक नहीं है. जाहिर है सिंगल मेंबर कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी बनती है तो उसने एक बंदे से मेंबर से अपने मेंबर्स की तादाद को ज़्यादा करना होगा. सो प्राइवेट कंपनी भी सिंगल मेंबर कंपनी बन सकती है, लेकिन उसने फिर अपने मेंबर्स को कम करना होगा. We'll study this single member company in very detail, and your concepts will be cleared. You will understand this chapter, single member company, in the upcoming lectures. Finally, the winding up of the company. It is actually the process of putting an end to the life of the company. Winding up होती है कंपनी की तहलील. आपने गौर किया, हमने स्टार्ट किया कंपनी के नाम से, कंपनी की रजिस्ट्रेशन से, और हम खात्मा कर रहे हैं कंपनी की वाइंडिंग अप से. बीच में पूरी कहानी, पूरी स्टोरी गुजर गई. कंपनी की बोरोइंग पावर्स की, कंपनी के डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की, कंपनी की ऑडिट की, और आखिर में कंपनी की तहलील, द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. ये जो कंपनी ने ये लंबी जिंदगी गुजारी जिसमें वो बहुत से मराहिल से गुजरी, अब उसकी वाइंडिंग अप हो रही है.
Winding up क्या है? It is the process of putting an end to the life of the company, and during this process the assets of the company are disposed of, the debts of the company are paid off out of the realized assets or from the contributories if any surplus is left. It is distributed among the members in proportion to the shareholdings in the company. सिंपल. अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी का खात्मा. जब कंपनी का खात्मा होता है तो डेफिनेटली कंपनी ने बहुत से मराहिल से गुजरना होता है. कर्जे देने होते हैं, क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना होता है, उनको उनका पैसा वापस करना होता है, सो अपने असासाजात को तकसीम करना होता है. सो ऐसे बहुत से मराहिल है. द कंपनी विल गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स in the process of winding up of the company. और याद रखें, जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, डिसोल्यूशन होती है, खात्मा होता है, उस वक्त कंपनी अपॉइंट करती है लिक्विडेटर को. लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर इज द वन who is appointed by the company in the process of winding up, and he is the one जो कि कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त उसके इन तमाम मसले मसाइल को हल कराता है. क्या मसले मसाइल? पेइंग ऑफ डेट्स, कर्जों को अदा करना, टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस इफ देयर इज एनी सरप्लस अमंग द मेंबर्स, if the liquidator is the official liquidator, so he will definitely work under the supervision of the court and through a recognized reporting system. और याद रखिए कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी जो होती है, कंपनी की तहलील जो होती है, या तो ये अदालत करती है या फिर कंपनी खुद करती है. व्हेन द कंपनी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कंपनी जब बनती है एक खास टाइम पीरियड के लिए और वो टाइम खत्म हो गया तो जाहिर है कंपनी ने वाइंडिंग अप करनी है. सो वो होती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जब कंपनी अपनी मर्जी से वाइंडिंग अप करे. But there are cases in which the winding up is by the court, the winding up of the company by the court. जब अदालत कहे कि नहीं भाई अपना बिजनेस रोक दो इधर ही और काम मत करो किसी भी वजह से, तो वाइंडिंग अप कंपनी खुद भी कर सकती है मुद्दत पूरा होने के बाद, या किसी भी वजह से वो खुद कह सकती है कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, या फिर वाइंडिंग अप अदालत भी आपको कंपनी को हुक्म दे सकती है कि जी आप और अपना बिजनेस ना चलाए. कंपनी को कहे कि अदालत जब कहे ऑर्डर दे कि वाइंड अप करे अपना बिजनेस, सो उसको हम कहते हैं द वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट. दोनों सूरतों में द कंपनी विल हैव टू अपॉइंट द लिक्विडेटर, एंड इफ द वाइंडिंग अप इज थ्रू द कोर्ट, द लिक्विडेटर इज नोन एज द ऑफिशियल लिक्विडेटर, और ऑफिशियल लिक्विडेटर काम करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट. ये था हमारा टॉपिक वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ. आगे चलकर आपने किन किन पार्ट्स को किस तरीके से डील करना होगा. एंड बिलीव मी, व्हेन you will go through the first chapter, the definition part, you will find the rest of the chapters easy. At least जब कुछ terms, कुछ concepts आपके सामने आएंगे which you have already studied in the definition part, so you will have no problem in understanding those terms, those concepts. Law language है, थोड़ा सा एक दफा पढ़ने से वो नहीं होगा. You will read at least twice and thrice and the subject matter will become easier after reading twice and thrice. These are the contents. We have done the elementary part, the share capital part, the borrowing power of a company, the audit and inspection part, management and administration part, the dividend of the company, single member company and the winding up of the company. ये हमने different parts किए और उसके अंदर फिर हमने different
टॉपिक्स पढ़ें. I hope when we will start the first chapter and then the second chapter, with every passing lecture you will get to know different things, you will find different terms, different concepts, and your concepts will become clear. I hope we will have a good time together. I will try my best to convey my knowledge to you, and you will concentrate, you will pay attention. I wish you all the best for now and forever. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.